سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ محفل سجائی گئی ہے. الحمدللہ آج 11ویں تاریخ میں لگ چکی ہے. مبارک مہینہ بھی اور مبارک دن بھی ہے. تو آئیے اسی مبارک برکت کے کچھ فیض حاصل کر لیتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابھی اپنی جان کے شکم میں آئے تھے. ابھی شکم کے اندر آئے تھے, پیدا نہیں ہوئے, زمین پر نہیں آئے, شکم میں آئے تھے. آپ کی والدہ ایک جنگل سے ہو کر جا رہی تھی. وہاں پر ایک انگور کا درخت دیکھی. جب سرکار غوث اعظم کی والدہ نے انگور کی درخت کو دیکھا تو اسے توڑنا چاہتی تھی کھانے کے لیے. جیسے ہاتھ آگے کرتے ہیں پھر ان کا دل رک جاتا ہے, ان کا من ہٹ جاتا ہے, ہاتھ نیچے کر لیتی ہیں. پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں, پھر ان کا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے. اسی طرح دو تین بار انہوں نے کیا, انگور کو چھوڑ دیا, واپس آ جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. پھر کچھ ہی دن بعد ایک بھکاری آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ کو محلے میں اکیلے دیکھ کر دیکھا کہ اکیلے ہیں, کوئی آس پاس میں نہیں ہے. غلط ارادہ کر لیا اس نے, غلط کام کرنا چاہا. اتنے میں ایک شیر آتا ہے. شیر اس کو دوڑاتا ہے جو سرکار غوث اعظم کی والدہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اس سے غلط ارادے تھے, اس کی نیت غلط تھی, اس کو ختم کر دیتا ہے. جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں, سرکار غوث اعظم ولایت ہوتی ہے, بڑے ہوتے ہیں, 2-3 سال کی عمر ہو جاتی ہے. سرکار غوث اعظم کی والدہ جب اپنے غور میں سرکار غوث اعظم سے پیار کر رہی تھی, جب سرکار غوث اعظم کے بالِ مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہے تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میری جان, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو آپ کی والدہ نے بڑے پیار سے کہا, بولے بیٹا کیا بات ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا, امی جان میں دنیا میں آیا تو نہیں تھا, دنیا میں پیدا تو نہیں ہوا تھا, بلکہ آپ کے شکم میں تھا. جب بھی میں نے آپ کو مدد کی تھی, جب بھی میں نے آپ پر احسان کیا تھا. تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں اے بیٹا تم نے کیسے میری مدد کی, کیا کچھ واقعہ بتائیں گے, کیا کوئی بات مجھے بتائیں گے تاکہ مجھے یاد آ جائے کہ تم نے کس طرح مجھ پر احسان کیا ہے. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے امی جان, جب تم نے انگور توڑنا چاہ رہی تھی, جب تم انگور کھانا چاہ رہے تھے, اس وقت جب آپ کا دل رہا تھا, اس وقت جب آپ کا ہاتھ نیچے آ رہا تھا, اس وقت بھی میں ہی تھا. جب آپ کا ہاتھ کو اوپر جانے نہ دے رہا تھا تو آپ کے والدہ غصے میں کہتے ہیں اے میرے بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا, مجھے کا دل کر رہا تھا, میں وہ انگور کھانا چاہتی تھی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے والدہ تجھے نہیں پتا تھا, اے میری امی جان آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جب آپ نے اس انگور کو توڑنا چاہتی تھی, جب آپ اس انگور کو اگر توڑتی, اس انگور کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, جیسے وہ آپ انگور توڑتی تو وہ آپ کو کاٹ لیتا, آپ کو نقصان ہو جاتا, آپ کو تکلیفیں ہوتی. مجھے ہرگز گوارا نہ گزرا کہ میرے امی جان کو کوئی دکھ پہنچائے, میری امی جان کو کوئی نقصان ہو جائے. نظام ملت اسلامیہ حضور غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں اے میرے لال دوستو تم نے کیا احسان کیا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے امی جان آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ بھکاری آپ کو پریشان کر رہا تھا, وہ بھکاری جب بھوکے ارادے سے آپ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا, اس وقت جو شیر بن کر آیا تھا, اس وقت جو شیر آگے اس کو بھرایا تھا, وہ کوئی اور شیر نہیں تھا بلکہ وہ شیر میں ہی تھا. غلام جیلانی
हाफिज गुलाम जिलानी इस्माइली साहब किबला जिंदाबाद। दारुल गौसे आजम जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल सरकार गौसे आजम शिकम में नहीं आए थे, इससे पहले ये करामत दिखा। सरकार गौसे आजम किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, न कोई आम वली, बल्कि पीरों के पीर है, वलियों के वली है। जिस तरह हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के इमाम, वलियों अंबिया के इमाम हैं, उसी तरह सरकार गौसे आज़म वली और नबी और सहाबा ये तीन होते हैं। लोग अक्सर होते हैं नबियों में अफजल हमारे आका है, वलियों में अफजल सरकार गौसे आज़म है, सहाबा में अफजल अबू बकर सिद्दीक। सरकार गौसे आज़म का बचपन का ही आलम है, यहाँ तक कि सरकार गौसे आज़म के नाना जान भी वली थे, आपके अक्के भी वली थे। एक औरत आपके नाना जान के पास आती है और एक बेटे के लिए हुए आती है और कहती है, ए अल्लाह के वली, मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, मेरा बेटा दुनिया से खत्म हो चुका है, लिहाजा सजदा करना है। तो आपके नाना जान ने फरमाया, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसकी एक भी सांस बाकी नहीं है, उसके लम्हात मुकम्मल हो चुके हैं, यहाँ से आप चलेगा। वो थोड़ी औरत रोती भी आई थी, रोती उछालती रही थी। रास्ते में सरकार गौसे आज़म मुलाकात गौसे आज़म से मुलाकात होती है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ माई बात क्या है, तू रोती भी गई थी, रोती हुई वापस भी जा रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह वाले के मुलाकात में रोते हुए इंसान जरूर आता है पर लेकिन मुस्कुराते हुए जाता है, लेकिन तुम रोती हुई आई थी, रोती हुई जा रही है। गुड़िया ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे नाना जान का बहुत चर्चा सुना था, मैंने बहुत नाम सुने थे, इनके पास जो आता है वो अपने मुरादे पा जाता है, वो मायूस होकर वापस नहीं जाता है, मुस्कुराते हुए जाता है, लेकिन मैं तो रोते हुए भी आई थी, रोते हुए जा रही हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, आखिर बात क्या है, किस वजह से रो रही है? बुढ़िया ने कहा कि मेरा बेटा है जो दुनिया से इंतकाल कर गया है, उसे जिंदा कराने के लिए आई थी, इसी को दिखाने के लिए लेकर आई थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहा इसकी सांसें पूरी हो गई है, इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, इसलिए उसे लेकर चले जाओ। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, तुम बिइज़्निल्लाह ऐ मुर्दे उठ जा, बचपन के आलम में फरमा रहे हो, ज्यादा उम्र नहीं हुई है, गालिबन 5 या 6 साल की उम्र है सरकार गौसे आज़म की। तुम बिइज़्निल्लाह जैसी बोलते हैं, अपनी आंखें खोल दो, रोने लगता है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, अरे ओ भाई रोते किस लिए है, तेरा बेटा तो जिंदा है। वो बूढ़ी माई देखकर बहुत खुश होती है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, वापस जाओ, मैं नाना जान से कह देना कि कोई भी अल्लाह वालों के दरबार में रोते हुए जरूर आता है, लेकिन मुस्कुराते हुए जाया करता है। वो बुढ़िया जाती है और कहती है, तो आपके नाना जान ने फरमाया कि अब्दुल कादिर कहाँ है? बताती है, आपके नाना जान छड़ी निकालते हैं और निकाल कर चल देते हैं, यही कहते हैं अभी अब्दुल कादिर की खबर लेता हूँ। सरकार गौसे आज़म ने
जब देखा कि नाना जान छड़ी लेकर आ रहे हैं, सरकार के हौसला भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप नाना जान दौड़ाते हुए तो कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर रुक जा, मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ। लेकिन आप भागते हो जाते हैं, यहाँ तक कब्र से गुजर होता है। कब्र के मुर्दे सरकार गौसे आजम के जुबान से इतना अल्फाज निकलना था, मुर्दे भागो नाना जान छड़ी लेकर दौड़ा रहे हैं। कसम पा खुदा की 70,000 साल पहले के मुर्दे भी कब्र से भागने लगे थे। इस्लाम जब ये हाल आपके नाना जान ने देखा कि अभी तक तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुर्दे कब्र से उठकर भागने लगे हैं, अगर मैं आगे तक जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप वहीं पर ठहर जाते हैं। मेरे अजीजों का भी गौर करना कि कोई भी इंसान अगर मुर्दे को उठने का हुक्म देता है तो मुर्दा उठ नहीं सकता है, क्योंकि वो तो मर चुका हुआ। लेकिन ये मेरे गौसे आजम की करामत है, कि मेरे गौसे आजम की शान है कि अगर वो मुर्दे को कहते उठ जाते तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। और कई हजार साल पुरानी मदद है, अगर वहां जाके कह देते हैं कि नाना जान छड़ी लेकर आ रहे हैं तो मुर्दे तौर से भागने लगते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम की शान बहुत है। सरकार गौसे आजम पर नजर डालो, सरकार गौसे आजम की सीरत को अपनाओ, सरकार गौसे आजम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हारी दुनिया में आखिर तुम्हें समझ जाएगी। सरकार गौसे आजम के दौर में एक गायकार रहा करता था जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी। आज भी कुछ लोग होते हैं कि जिसकी आवाज अच्छी होती गाने मुझे गाना गवाया करते हैं, या जिसकी आवाज नाच अच्छे लगने से नाच पढ़वाते हैं, या जो नाचने में माहिर होता है उसे नाच कराते हैं। तो उसका आवाज बहुत अच्छी थी, गाना अच्छा गाया करता था। उससे काफी लोग उसके फैन बन चुके थे, काफी दोस्त अहबाब जमा हो गए थे। सरकार गौसे आजम ने एक बात उससे जाकर कहते हैं कि तेरी आवाज तो अच्छी है, तो गाना अच्छा गाता है, तो तू सरकार मदीना का नाम पढ़ाकर तेरी मतलब आखिरत को समझ जाएगी। तो गाना गाता है, तेरी दुनिया भी नहीं समझ सकती न आखिरत भी समझ सकती है। लेकिन आज कुछ लोग कहता है ना कि किसी को अगर इस्लाह करो, किसी को अच्छी बातें बताओ, बुरा लगता है, वो सोचता है मेरे काम अच्छा नहीं लगा, उनको जलन हो गई। उसने भी वही सोचा कि अब्दुल कादिर मुझसे चल रहे हैं, गौसे आजम को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। उसने पूरी जिंदगी पूरी उम्र भर सरकार गौसे आजम की बुराइयां करता रहा, सरकार गौसे आजम को शान में गुस्ताखियां करता रहा, सरकार गौसे आजम को बुरा भला कहता रहा। जब उसका बुढ़ापापन आ गया, जब उसने एकदम से उसका बुढ़ापा आवाज छिप गई, शरीर में ताकत ना रहे, जुबान काम ना करती थी कि वो गाना गा के पैसा कमाते थे। जब उसकी एकदम पूरी हालत बिगड़ चुकी थी, यहाँ तक के उसके दोस्त अहबाब उसको छोड़ दिए थे, उससे फूल लगाना पसंद नहीं करते थे, देखते ही देखते घर वालों ने भी उससे फूल लगाना पसंद ना किया करते थे। उसके कपड़े मैले हो गए थे, उसके कपड़े फटे पुराने हो गए थे, यहाँ तक कि उसके घर वाले खाना देने को भी तैयार न थे। जब तक का पैसा था, जब तक का उसकी कमाई थी, जब तक का घर वाले उसे खाना दिया करते थे। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया, जब उसके पास पैसे नहीं बचे, तो घर वालों ने भी उसके घर से निकाल दिया। उसने जब मायूस होकर घर से निकल कर कब्र के पास जाकर बैठ जाता है और बैठकर यही सोचता रहता है कि अभी मेरी हालत ये है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे खाना देने वाला भी कोई ना मिलेगा। आज तो कोई एक टाइम का खाना देने के लिए तैयार नहीं है, तो कल मरने के बाद कफन देने वाला भी तो तैयार ना होगा। वो कब्र के पास बैठे हुए यही सोच रहा था कि इतने में सरकार गौसे आजम का गुजर होता है, सरकार गौसे आजम को नजर पड़ती है, उसका एक को नजर पड़ती है। सरकार गौसे आजम चलते हुए रास्ते से जा रहे थे, लेकिन सरकार गौसे आजम ने अपने कदम मुबारक को रोक दिया। रोक कर नजर डालते हैं, गौर से मैं जानते हैं कि ये वही शख्स है जिसे मैंने जवानी में इस्लाह किया था कि तू गाने मत गाया कर, आज इसलिए हालत हो गई है। सरकार गौसे आजम वापस जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं।
जाने के बाद अपने मुरीदीन से कहते हैं लो ये दीनार लेकर जाओ, ये कुछ रकम लेकर जाओ, कब्रिस्तान के पास जाना, वहाँ पर एक फकीर बैठा हुआ है, उसे तुम लेकर आ जाओ मेरे अजीजों। तो वो मुरीद उठता है, लेकर जाता है, जाकर देखता है कि वहाँ कब्र के पास एक फकीर बैठा हुआ है, कब्र के पास एक फकीर बैठा हुआ है। उस फकीर के पास जाता है और जाकर के उसे हाथ मोड़ने देता है जो सरकार गौसे आज़म ने दिया था। वो सर को उठाता है, उठाने के बाद जैसे वो हाथ में रकम लेता है, लेने के बाद वो कहता है कि कौन है वो शख्स जो मुझसे आज भी प्यार करता है, कौन है वो शख्स जो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, किसने ये रकम दिए हैं, किसने ये पैसे दिए हैं। तो मेरे दीन कहता है कि मुझे बताने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि मुझे आप तक पहुँचाने का हुक्म दिया गया था, लिहाजा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुरीद वापस आता है, इतने में वो सरकार गौसे आज़म के पास आ जाता है। सरकार गौसे आज़म दरसगाह पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे। आज का माहौल देखा जाए कि कोई भी पीर किसी गरीब मुरीद की ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। जगह छोड़ने की तो दूर की बात है, उससे बात करना भी पसंद नहीं करता। अगर कोई भी गरीब पीर है, मुरीद है, तो पीर उससे बात करने के लिए तैयार नहीं लेता है, बल्कि उससे कहता है कि जुमेरात को आना, पीर को आना, फला टाइम में आना, फला दिन में आना। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं फला काम के लिए जाता हूँ। लेकिन अगर कोई मालदार मुरीद आ जाता है तो उसे पीर अपना वक्त निकाल कर देता है। मेरे अजीजों गौर करो कि पीरों के पीर जो है शहंशाह बगदाद है, अब आओ उंगली से डालते हैं सरकार गौसे आज़म दरगाह पर बैठे हैं, बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, बच्चों के सबक सुन रहे हैं। लेकिन जब वो फकीर आता है और आने के बाद दरवाजे पर खड़े होता है तो सरकार गौसे आज़म से प्यार से कहते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई थी। तो वो उसने कहा नहीं, कोई कमी नहीं रह गई थी। तो सरकार गौसे आज़म उसकी आंखों में, उस फकीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार गौसे आज़म ने देखा कि जब इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, दरगाह पढ़ा रहे हैं, लेकिन दरगाह से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद जाकर खड़े होकर कहते हैं बता क्या कुछ कमी रह गई थी, क्या तुझे कुछ और चाहिए। रोते हुए कहा नहीं, बल्कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी, पूरी उम्र आपकी बुराई की है, पूरी उम्र आपकी शान में गुस्ताखियां की है, पूरी उम्र आपकी तौहीद करता रहा, पर लेकिन अब भी आप भी मुझसे प्यार करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अहबाब भी मुझसे मुँह लगाने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में आज मुझे खाना देने के लिए तैयार नहीं है, पर लेकिन आज भी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, मुझे याद है कि आपने बचपन, आपने जमाने के आलम में मुझसे कहा था कि तू नाते पढ़ ले, तू तौबा कर ले, तू गाना मत गाया कर। क्या मैं आज तौबा करूंगा? क्या आज मेरे तौबा का दरवाजा खुला है? तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि सिर्फ तौबा ही नहीं, तो अपना हाथ आगे कर, मैं तुझे अल्लाह का महबूब बना देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लखनऊ देखोचिया, लखनऊ देखोचिया, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। मेरे ऐसे सरकार गौसे आज़म की शान देखो। सरकार गौसे आज़म को एक टाइम पर 70 लोगों के यहाँ दावत में जाना था। एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही वक्त। क्या हम जा पाएंगे? चलो गौसे आज़म के बारगाह में चलो। ये गौसे आज़म के बारगाह में एक टाइम पर 70 लोग आते हैं और सभी आकर यही कहते हैं हुजूर मेरे घर दावत तशरीफ लाइए, हुजूर मेरे घर दावत तशरीफ लाइए, हुजूर मेरे घर दावत तशरीफ लाइए। एक टाइम में 70 लोगों ने वक्त कहकर चले गए कि मेरे घर दावत है, आजा आपको जरूर आना है। सरकार गौसे आज़म ने सबकी दावतें कबूल कर ली।
کسی کو منع نہیں کیا، کسی کو رشوت ہونے نہیں دیا۔ اگلے دن سبھی لوگ جن جن لوگوں نے دعوت سرکار غوث اعظم کو دیے تھے کھانے کے لیے، اگلے دن سب دوران گفتگو کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم میرے گھر تشریف لے کر آئے تھے، دوسرا کہتا نہیں میرے گھر تشریف لائے تھے، تیسرا بتا نہیں میرے گھر تشریف لائے تھے۔ آپس میں سب حیران، لوگوں نے سوچا کہ آپس میں گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ چلو انہیں سے پوچھتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ، سرکار غوث اعظم ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کل رات دعوت کھانے آپ کسی گھر گئے تھے؟ آپ میرے گھر آئے تھے، جائیں کے گھر گئے تھے، کسی اور کے گھر گئے تھے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اوپر دیکھو، درخت کے پتوں پر دیکھو۔ جب لوگوں نے درخت کے پتوں پر دیکھا تو ہر درخت کے پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہا تھا، ہر درخت کے پتوں پر شکل عبد القادر نظر آ رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ اب تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کس سے ہدایت پانے کے لیے گیا تھا۔ میرے عزیزوں غور کرو کہ سرکار غوث اعظم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے پانی کے ساتھ چھینکا اڑا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے، آپ کے ساتھ یہ نبی آپ کے ساتھ وضو کر رہے تھے۔ نماز سے سرکار غوث اعظم وضو کر رہے ہیں تو آپ کے مریدین نے فرمایا وضو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو، تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ 2-3 دن کے بعد سرکار غوث اعظم نے اپنے مرید سے کہا دریا کے کنارے جاؤ، وہاں جاؤ، ایک کشتی آئی ہوگی، اس کشتی کے پاس جا کر کہنا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے۔ مرید جاتا ہے، جا کے کشتی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے۔ کشتی والے نے اس کا استقبال کیا، اسے انعامات سے بھی نوازا، اس کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر وہ کہتا ہے کہ حضور جب میری کشتی دریا میں پھنس رہی تھی، جب میری کشتی دریا کے درجے میں پھنس رہی تھی، جب مجھے یہ لگا کہ میری کشتی اب دریا سے نہیں نکل سکتی ہے اور میری کشتی ڈوبنے والی ہے، اب میری جان جانے والی ہے، اس وقت میں نے آپ کو پکارا تھا، قسم با خدا میں نے عقیدے کے ساتھ پکارا تھا، یا غوث المدد، یا غوث میری مدد کے لیے آؤ۔ اس وقت جب میں نے آپ کا نام لیا تھا میری کشتی سے سلامت ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے آپ کی مدد کی پکارا تھا۔ اور میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر اللہ والے مدد کے لیے ضرور آتے ہیں۔ کسی کو کوئی بھی اللہ والے کو دل سے پکارے، کسی کو دل سے ستائے دے، عقیدہ رکھے کہ ضرور آتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں اوپر مدد کیا کہ سرکار کیا کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم کو مریدین نے کہا حضور آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ کا مرید آپ کو پکار رہا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھا ہوا دکھتا ہے اسی طرح مجھے پوری کائنات نظر آتی ہے۔ اب غور کرو کہ شہنشاہ بغداد کا عالم یہ ہے تو تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ شہنشاہ بغداد تو ولیوں کے تاجدار ہیں، لیکن تاجدار مدینہ اماموں کے امام، رسولوں کے امام، نبیوں کے امام سرکار غوث اعظم محفل میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضور کی شان کہ ایک وقت میں کچھ لمحے میں حضور معراج پر گئے، مسجد اقصی سے معراج پر گئے، جو آج اسرائیل کے کفار لوگ مسجد اقصی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو سب کی نظر مسجد اقصی پہ کھڑی ہوئی ہے، وہی مسجد اقصی ہے جسے مسجد اقصی سے سرکار معراج کے سفر طے کر رہے ہیں۔
सरकार गौसे आज़म अपनी महफिल में बयान कर रहे थे कि सरकार ताजदार मदीना ने रात के चंद लम्हों में अर्श पर गए, लोगों कलम पर गए, सिदरा से भी आगे गए, सिदरा तक जाकर जिब्रील घुस जाते हैं, लेकिन सिदरा से भी आगे मेरे आका गए। जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, अल्लाह ताला की ज़ियारत होती, अल्लाह ताला से दीदार नहीं किया। इतना करीब हो गए थे कि अल्लाह से हमारे आका इतने करीब हो गए थे कि अगर बीच में एक सुई डाली जाए तो जमीन पर आ जाती। वहां पर गए, वहां से जमीन पर तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह ने आपको तोहफे में क्या दिया था। मेरे अजीज़ों गौर से सुनना और तवज्जो के साथ सुनना, अमल करने की कोशिश करना कि मेरे सरकार को अल्लाह ने तोहफे में दिया था। कोई नबी को अल्लाह ने तोहफे में बुला कर नहीं दिया था, बल्कि किसी को और कोई हुक्म दिया है तो वही के जरिए नाजिल किया है। लेकिन मेरे अजीज़ों कुर्बान जब अपने उम्मती होने पर, लेकिन तुम्हें फख्र आना चाहिए कि हम उम्मती किसके हैं, अपने आका के हैं। जब अल्लाह ताला ने उन्हें तोहफे में क्या दिया था, 50 वक्त की नमाजें दी थी, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका के प्यार पर। जब उन्होंने जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि आप अल्लाह की दरगाह से होकर के आ रहे हैं, अल्लाह ने आपको तोहफे में क्या दिया है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें तोहफे में 50 वक्त की नमाज दी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप इसे रद्द करा लीजिए, आपकी उम्मत इतना नहीं अदा कर सकती है। मेरे अजीज़ों कुर्बान जाओ कि मेरे आका अपनी उम्मत के बारे में कितना ख्याल करते हैं। और एक हम उम्मती हैं कि जो गुनाह किए जाते हैं, कभी नमाज पढ़ने की कोशिशें नहीं करते, कभी दीनी काम के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर नाच गाने का माहौल बन जाए तो पूरी रात भर के नाच गाने देखते हैं, लेकिन अगर मिलाद मुस्तफा मनाया जाए तो हर कोई नहीं आता है, बल्कि काम के लिए जाता है। और आज लोग नमाजों के लिए तरह तरह के बहाने बताते हैं, लेकिन नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। लेकिन अगर उन्हें बता दिया जाए तो फला जगह फला टाइम पर नाच हो रहा है, नाचने के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे आका है, उन्हें 50 वक्त में तोहफे में नमाज दी गई है, वापस कम कराते आते हैं, वापस जाते हैं, 40 वक्त की नमाज कम कराते हैं। यहाँ तक के कम कराते वक्त 5 वक्त की नमाज जब बचती है तो सरकार रुक जाते हैं और 5 वक्त की नमाज अपने उम्मतियों को दे देते हैं। सरकार हुजूर सरकार गौसे आज़म यही बयान कर रहे हैं कि अभी सरकार इतना सारा वक्त कर लिए हैं, अभी अपने घर वापस आते हैं, बिस्तर गर्म था, जंजीर दरवाजे की हिल रही थी, देखिए खुदिया गालिबन ईसाई का गुस्ल होता है। वो जब सरकार गौसे आज़म के जुबान से अल्फाज सुनता है कि इतना सारा सफर सिर्फ एक मुख्तसर से वक्त में हो गया, तो वो सोचता है कि सरकार गौसे आज़म झूठ बोल रहे हैं, ये अब्दुल कादिर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और खुद का अंदाजा लगा ले कि यहाँ से कहीं 2-4 किलोमीटर दूर जाना होता है तो उतना वक्त नहीं लगता है। लेकिन मेरे अजीज़ कुर्बान जाओ कि सरकार जाने आलम दुनिया से क्या गए, जाने आलम दुनिया से मेराज पर गए तो दुनिया की जान उसी में फैल गई थी। वो यहूदिया गालिबन ईसाई घर जाता है और अपने बीवी से कहता है कि खाना खिलाओ, खाना बना दिए बताइए, वरना खाना बना दो। तो उसकी बीवी कहती है ठीक है खाना मैं बनाती हूँ। तो वो कहता है जब तक तुम खाना पकाओगे मैं चश्मे पर नहा कर आता हूँ, जब तक मैं चश्मे पर जा करके नहा कर आता हूँ, फ्रेश होकर के आता हूँ। तो वो जाता है और जाने के बाद चश्मे पर अपने कपड़े उतार के रख देता है। रखने के बाद जैसे गोता लगाता है, यानी चश्मे के अंदर जैसे डुबकी मारता है, आपके अंदर जैसे ढूंढता है। अभी तो तौबा था तो मर्द था, लेकिन जब दूध का बाहर निकला तो ठीक बन चुका था। मेरे अजीज़ों के बाद ये पहले तो मर्द था, अभी औरत बन चुका है। वो बाहर आता है, उसके पास तो कपड़े भी औरत के लिबास का था, वहाँ पर एक धोबी कपड़े धुलने के लिए लाया था। वो देखता है कि एक पारेना औरत है जो किसी का कोई सहारा नहीं है, वो धोबी उसे कपड़े देता है, उसे कपड़े पहनाता है। कपड़े पहनाने के बाद उसे अपने घर लेकर जाता है, अपने घर ले जाने के बाद में उसे निकाह भी करता है। निकाह करने के बाद उसके बच्चे भी होते हैं, 2-3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। वो बहुत मायूस हो जाता है कि क्या हो गया मुझे, मैं तो अभी मर्द था और कैसे बन गया। फिर उसने उसके 2-3 बच्चे होने के बाद उसने फिर वापस उस तालाब के पास आता है, वापस चश्मे के पास आता है। फिर जैसे डुबकी लगाता है, अब फीसद था बन गया था, यानी औरत से मर्द बन चुका था। उसने देखा
وہی لوگ وہی سب کچھ ہے گھر جاتا ہے. گھر جانے کے بعد اب تم سوچو کئی عرصہ کا گزر چکا تھا, بچے پیدا ہو گئے تھے, لیکن اس نے اپنے گھر پہنچا. اس کی بیوی کیا کہتی ہے, بہت جلدی آ گئے. کیا بات ہے, نہائے نہیں, کیا جسم میں کوئی بات ہو گئی, اب بہت جلد آ گئے. میرا کھانا چار بھی نہیں ہوا ہے. میرے عزیزوں قربان جاؤ غوث اعظم کی ولادت پر, قربان جاؤ غوث اعظم کی دستگیری پر. پھر اس نے سوچا کہ غوث اعظم کی شان یہ ہے تو مدینے والے آقا کی شان کیا ہوگی. اس نے دوڑتے ہوئے اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ کھانا میں بعد میں کھاؤں گا, پہلے میں غوث اعظم کے بارگاہ سے ہو کر آتا ہوں, پہلے میں مرید بن کر آتا ہوں, پہلے میں توبہ کر کے آتا ہوں, پہلے میں اسلام میں داخل ہو کر آتا ہوں, کھانا بعد میں کھاؤں گا. دوڑتے ہوئے چلتا ہے. دربار غوث اعظم اپنے کوئی دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, فرماتے اپنے کوئی دل سے فرماتے ہیں راستہ چھوڑ دو, کوئی میرا غلام آ رہا ہے, راستہ خالی کر دو, میرا کوئی مرید آ رہا ہے. مرید تعجب کرنے لگے کہ کون مرید آ رہا ہے جسے حضور کا انتظار کر رہے ہیں, جس کا حضور انتظار کر رہے ہیں. لوگوں نے گھوم گھوم کر دیکھنا شروع کر دیا. دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور دوڑتے ہوئے آتا ہے, آنے کے بعد سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور گر کے روتے ہوئے عرض کرتا ہے میرے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتا چل گیا کہ جب یہ شہنشاہ بغداد کا عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا. مجھے پتا لگ گیا ہے, لہذا میں مجھے توبہ کرا لیجیے, مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے, میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے, میں ایسا کبھی یہ سے تقریر عزیزان نے ملت اسلام ٹائم کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں نیند آتے ہوئے ٹائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے گفتگو اسی میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے.